Hello and welcome student. This is Arif sir. Today we will read literature of class 7. This is our second chapter and the name of chapter the magic bonbons. Okay. Basically in this chapter we will understand about a magical bonbons. Okay. This is very comedic chapter. In this chapter we will understand about these characters. Okay. This is funny chapter. Okay. In this chapter there are many characters. The first character is Dr. Doss, Claribel, Beshi, Bosley, Professor and Santos. Okay. In this chapter there are many word meanings I have written on the board. The first is bonbons, that means candy. Accomplishment, that means skill. Skill means यानी कि वैसी हुनर, किसी मतलब कोई चीज सीखने की हुनर. Candy means मिठाई या चॉकलेट हम लोग उसको कह सकते हैं. Sorcery means black magic, काला जादू जिसको बोलते हैं. Progressive is an age marked by an new idea, यानी वैसा एज जिसमें हम क्या करते हैं, वैसा एज जिसमें लोग क्या करते हैं, अच्छे आइडिया सीखते हैं. Discord means harsh sound, ज्यादा sound. Okay. Prelude means a short piece of music. Music का छोटा सा piece ले लें, टुकड़ा ले लें. Okay. Yell means Yell is a university. Okay. In this chapter, we will understand. Okay. About this chapter, about this funny story. Okay. Let's begin our chapter. This is your chapter. Okay. And the author of this chapter is L. Frank Baum. Okay. This story is about a series of arbitrary silly events which follows after a bunch of unsuspecting people eat of a box of bubbles. Basically in this chapter में एक bonbons के बारे में है कि bonbons एक यानी कि क्या होता है, मैजिकल bonbons होता है जिसको बहुत सारे लोग खा जाते हैं और खाने से वो क्या करते हैं, फनी एक्टिविटी करते हैं. ये कॉमेडी चैप्टर. ओके. There lived in Boston an old and wise chemist by the name of Dr. Doss who dabbled somewhat in magic. There also lived in Boston a young lady by the name of Claribel Surtz who possessed a lot of money, little wit and intense desire to go upon the stage. एक जगह बॉस्टन एक शहर है इन आउट ऑफ इंडिया. ये एक ऐसा शहर है मतलब कि यहाँ पर एक इंसान रहता है, जिस डॉक्टर रहता है जो केमिस्ट यानी दवा बेचने वाले डॉक्टर होते हैं जिनका नाम डॉक्टर डॉस होता है. वो क्या करते हैं, उनके अंदर वैसा ये होता है कि क्वालिटी होता है कि वो क्या करते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं. और उसी सिटी में एक क्लैरिबेल नाम की एक लेडी होती है जो क्या करती है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन उनको कोई चीज आता नहीं है. वो बहुत कुछ सीखना चाहती है लेकिन वो कुछ जानती नहीं है. फिर क्या होता है, so Claribel went to Dr. Doss and said, I can't neither sing nor dance. I can't recite words nor play on a piano. I am not acrobat nor high kickers. Yet I wish to go upon the stage. What shall I do? Are you willing to pay your such accomplishment? Asked the wise chemist. Certainly, Uncle Doss answered Claribel, jingling her purse. तो फिर क्या करती है, क्लैरिबेल सोचती है कि चलो डॉक्टर डॉस से मिलते हैं. डॉक्टर डॉस क्या थे, मैजिक यानी वो उनके अंदर एक सोर्सी का पावर था, यानी ब्लैक मैजिक करने का वो पावर था उनके अंदर. तो वो आती है डॉक्टर डॉस के पास, बोलती है कि अंकल मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन मैं ना ही पियानो बजाना जानती हूँ, ना ही मैं एक भी प्रीलर भी जानती हूँ यानी म्यूजिक बजाना, ये म्यूजिक गाना जानती हूँ, ना मैं किसी चीज को किक मार सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्या मैं सीख पाऊंगी? तो डॉक्टर डॉस बोलते हैं कि हाँ. डॉक्टर डॉस वाज ए वाइज मैन. ओके. वाइज एंड ओल्ड मैन एंड ही वाज ए केमिस्ट. ओके. वो बोलते हैं उससे कि हाँ तुम सीख सकती हो, क्या तुम इसके लिए पे करोगी? तो बोलती है कि हाँ मैं इसके लिए कितना भी फी आपको पे कर सकती हूँ. Then come to me tomorrow at 2 o'clock. Sat all the night the practice what is non-chemical sorcery, so that when Claribel Surtz came next day at 2 o'clock, he showed her a small box filled with what closely resemble French bonbons. तो वो बोलते हैं कि ठीक है जाओ, कल दोपहर में 2 बजे तुम आना. पूरी रात तक डॉक्टर डॉस ने बहुत सारा प्रैक्टिस किया ब्लैक मैजिक का और प्रैक्टिस करके बॉन्बॉन्स को बनाया. ओके. मैजिक यानी कि कैंडीज बनाया. उसके लिए बहुत सारे कुछ मतलब 5-6 कैंडीज उसके लिए बनाए. किसके लिए? क्लैरिबेल के लिए वो कैंडीज बनाए कि नेक्स्ट डे क्लैरिबेल आएगी अपना फी लेकर के, तो फिर डॉक्टर डॉस क्या करेंगे, उसको देंगे और उससे उसका अपना फी लेंगे. This is progressive, said the old man, and your Uncle Doss keeps right along the position. Now, one of the old-fashioned suitors you have made you nasty. Bitter pills too slow. I have kept in mind your taste and convenience. Here are some magic bonbons. If you eat
फिर दूसरे दिन जब वो आती है क्लैरिबल, डॉक्टर डॉस बोलते हैं कि ये तुम्हारा जो एज है वो प्रोग्रेसिव एज है, यानी कि इस एज में तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए पूरी रात मतलब काफी हार्ड लेबर करके तुम्हारे लिए कुछ मैजिकल बॉन्बन्स बनाया है, 5-6 बॉन्बन्स बनाया है। वो अलग अलग डिफरेंट कलर के वो बॉन्बन्स होते हैं, कैंडीज होते हैं, और सबका अलग अलग यानी कि उसका अलग अलग सबका फंक्शन होता है, वो बताएंगे क्या होता है। If you eat this one of the lavender color, you can dance as lightly and gracefully. If you have trained lifetime, after you consume the pink one, you will sing a nightingale. Eating your white is able to become a finest inclinist in the land. वो आते हैं उसमें डिक्शनरी उसको देते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स देते हैं, छोटा सा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे डेस 5-6 कैंडीज होते हैं उसमें। तो बोलते हैं कि लो इसमें जो लेवेंडर कलर का कैंडीज है, अगर वो तुम खा लोगी तो तुम्हारा जो माइंड हो जाएगा वो काफी मतलब अजीब तरह का हो जाएगा, जिससे तुम क्या कर सकती हो, प्रोफेशनल डांसर बन सकती हो, और वैसा डांसर बन जाओगे कभी भूल नहीं सकती, मैं लगेगा कि तुम प्रोफेशनल डांसर हो। इसमें कैंडीज का जो बॉक्स देते हैं, उस बॉक्स में जो लेवेंडर कलर का जो ये लेवेंडर कलर का जो कैंडी होता है, वो बोलते हैं कि ये लेवेंडर कलर का जो कैंडी खा लोगी तो तुम क्या हो जाओगी, एक मतलब प्रोफेशनल डांसर हो जाओगी। और उसमें से अगर तुम पिंक वाला खाओगी तो तुम नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल की तरह क्या खाओगी, सिंगिंग करने लगोगी। और बताते हैं अगर तुम व्हाइट खाओगे तो मतलब कि बहुत ज्यादा इस वर्ल्ड की फेमस लेडी बन सकती हो। ईटिंग द will the chocolate piece is charm you and playing the piano better and yellow bonbons can easily kick। और बोलते हैं कि जो चॉकलेट कलर का जो bonbons है, अगर तुम उसको खाओगी तो तुम क्या करो, पियानो बहुत अच्छी तरह से तुम बजा सकती हो। और जो इसमें का जो और जो अदर कलर का था, ये लेमन येलो कलर का बॉन्बन्स तुम अगर उसमें का खा लेती हो तो तुम 6 फीट ऊपर तक जंप कर सकती है, किसी चीज को 6 फीट ऊपर मतलब किक कर सकती हो। यानी उसमें जो बॉन्बन्स देते हैं डॉक्टर डॉस, उसको मतलब बॉक्स देते हैं, उसमें अलग अलग कलर का बॉन्बन्स होता है और सबका अलग अलग काम बताते हैं कि पिंक वाला खाओगे तो तुम नाइटिंगेल की तरह गाने लगोगे, व्हाइट वाला खाओगे तुम चार्मिंग पर्सन हो जाओगे, येलो लेमन खाओगी तो तुम किक मार सकती हो। इसी तरह के मतलब बहुत सारे कुछ 5-6 कैंडीज थे उसमें। How delightful! Exclaimed Terrible, who was truly interrupted. You are certainly most clever successors. And he held out the hand of the box. Said old wise man, a check please. Oh yes, I'm sure. How stupid of me to forget it. She said. Dr. Doss returned the box in his hand while she signed a check and large amount of money, after which he allowed her to hold the box herself. Are you sure you have made the strong enough? She inquired anxiously. It usually take a great deal to affect me। तो बोलते हैं फिर वो मतलब उसको बोलती है कि सच में मैं ऐसा कर पाऊंगी, तो बोलते हैं डॉक्टर डॉस हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, मैंने पूरी रात मेहनत करके तुम्हारे लिए ये कैंडीज यानी कि तुम्हारे लिए बॉन्बन्स मैजिकल बॉन्बन्स बनाया है, तुम इसको लो। तो हाथ बढ़ाती है वो लेने के लिए क्लैरिबल। तो डॉक्टर डॉस बोलते हैं पहले तो मेरा चेक, पहले अपना मेरा फी तो दो। तो बोलती है अरे मैं तो बेवकूफ, मैं कैसे पागल हो गई, मैं भूल कैसे गई कि आपको फी भी देना है। तो वो एक चेक निकालती है अपने बैग से, क्लैरिबल अपने पर्स से चेक निकालती है और उसमें बड़ा सा अमाउंट पूछ लेती है। हियर एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट मेंशन, ओके, एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट मेंशन्ड हियर। तो वहां पर वो मतलब बड़ा सा अमाउंट होता है, तो अमाउंट मतलब ऐसा कोई लॉन्ग मतलब लार्ज अमाउंट होता है, वो दे देती है उसको चेक साइन करके। और वो बोलती है कि ठीक है, क्या सच में आप सही बोल रहे हैं? तो बोलता है कि हाँ हाँ तुम इसे जाओ और खा कर तो देखो। My only fear, replied Dr. Dawes, I have made them too strong for the first time. I have been called upon to prepare these wonderful confections. Don't worry, said Claribel. The stronger they act, the better I shall act myself. She went thus after saying, but while shopping in the another store, she placed the precious box on the ribbon counter and forget all out. Then little Bessie Bostwick came to the counter to buy hair ribbons and laid her purse beside the box. When she went away, she gathered up the box with their other bundles of the trotted off home with it. फिर वो वहां से वो बोलती है उससे, तो क्या मैं सच में वैसा करने लगूंगी जैसा आप बोलते हैं? डॉक्टर डॉस बोलते हैं कि हाँ मैंने तो बहुत मेहनत किया है, आज तक मैंने इस तरह का बॉन्बन्स कभी नहीं बनाया, बस मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे कहने पर ऐसा मैजिकल बॉन्बन्स को बनाया, तुम एक बार इसे टेस्ट करके देखो। तो बोलती है ठीक है, वो बाय बोलते हुए चली जाती है, यानी क्लैरिबल बॉक्स को कैंडीज के बॉक्स को लेकर के जाती है। तो वो शॉपिंग करने के लिए यानी शॉप में चली जाती है, शॉप में एक काउंटर पे वो रख देती है और शॉपिंग करने लगती है। अचानक मतलब कि वो भूल जाती है, फिर उसको वापस लेना भूल जाती है। तो वहां पे फिर एंट्री होती है बेसी के। बेसी वाज ए लिटिल गर्ल्स ऑफ 12 इयर्स एज, ओके।
तो वो आज वो भी क्या करती है, वो रिबन खरीदने के लिए बेसी जो है उसी शॉप में, जिस शॉप में क्लैरीबेल गई थी अपने वो प्रीसियस बॉक्स को लेकर के, उसी में बेसी भी आती है, रिबन खरीदती है और ढेर सारा कुछ सामान खरीदती है और संबंधित सामान को जब गैदर करती है तो साथ साथ वो जो बॉक्स होता है, क्या बॉबन छोटा सा बॉक्स होता है, उसको भी अपने बैग में रख लेती है बाय मिस्टेक, ओके, और वो घर पहुंचती है। Bessie never knew until after she had hung her coat in a hall closest to counted her purse, then exclaimed, "How many? One too many." They opened the exclaimed, "What is the candy?" Someone must have misled, but it is too small a matter of worry. There are only few pieces. So she dumped the content of the box and one beans. She was fond of chocolate at it and gently while she exclaimed her purchase. फिर वो आती है, वैसी अपने घर आती है, तो सब सामान को निकालते तो चौंक जाती है कि ये किसका सामान, समझ जाती है किसी गलती से ही मेरे बैग में ये आ गया। वो सोचती है अब क्या करे, फिर देखती है कि तो छोटा सा बॉक्स है और उसको खोलती है तो देखती है कि उसमें कुछ कैंडीज ही हैं। तो वो सोचती है कि चलो कोई बहुत बड़ी कैंडीज नहीं है, ये इतना पर मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे रख देती हूँ, और उसको खोल करके उसमें से चॉकलेट कलर का कैंडीज को वो निकालती है। Then these were not many, for Bessie, only 12 years and old, not trusted her parents, spent much money at the store. But while she tried on her ribbon, she suddenly fled and desired to play piano, and desire at last became an overpowering. She went into the parlor and opened the instrument. फिर वो जैसे चॉकलेट खाती है, चॉकलेट खाते ही कि चॉकलेट कलर का जो कैंडी खाती है, खाकर उसका अजीब तरह का मन करता है, वो मतलब अपने रिबन को ऐसे टच करती है तो उसका मन करने लगता है पियानो बजाने। उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आ जाती है जिसकी वजह से वो सोचती है कि चलो पियानो बजा जाए, तो वो पार्लर में जाती है। पार्लर यानी उसके घर के पास में होता है, यहाँ पर पियानो का मतलब पियानो और उससे रिलेटेड ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वहां पर जाती है। और फिर क्या करते हैं, द लिटिल गर्ल विथ इनफाइनाइट पेंस लर्न टू pieces of which usually played of the jackery movement of the right hand, left hand, forget to keep, and made dreadful discord. But under the influence chocolate bonbon, she sat down, ran the finger tightly and over keys, producing such exquisite harmony, and was filled the amazement at the on performance. That's were prelude. However, the next moment she dashed the Beethoven's seventh sonata and played it magnificently. फिर वो पियानो को ओपन करती है, पियानो को ओपन करते उसको मालूम, इससे पहले वो क्या करती है, वो पियानो को बजाना जानती भी नहीं थी, नहीं पियानो को मतलब वो कभी टच भी की थी। लेकिन फिर उसका वहां पर जब पियानो को देखती है, वो जो पार्लर में जाती है पियानो को देखती है, तो पियानो को टच करती है, तो अपनी उंगली को, फिंगर्स को उस पर टाइटली, पियानो की की पर टाइटली रखती है, तो वो धीरे धीरे बनाती है। तो पहले वो प्रीलड बनाती है, यानी कि छोटे छोटे म्यूजिक के छोटे छोटे साउंड बनाती है। फिर अचानक क्या होता है कि मतलब वो बहुत अच्छा सा म्यूजिक उस पर से पियानो से क्रिएट करने लगती है। Her mother's hearing unusual burst and melody come downstairs to see which musical guests have arrived. But when she discovered it was her own little daughter who were playing it divinely, she had a tap of the play petition of the heart and sat down the sofa until it should pass away. क्योंकि उसकी आवाज को, पियानो की जो आवाज को सुनती है उसकी माँ, छत पर रूम में होती है, तो उसकी माँ आवाज को सुनती है तो उसको लगता है कोई प्रोफेशनल पियानो प्लेयर आ गया है, तो वो नीचे आती हैं, तो देखती हैं तो ये तो उनकी लिटिल गर्ल बेशी है, तो वो क्या करती हैं, चुपचाप वहीं पर बगल में ही बैठ जाती है सोफे पर, जाती सोफे के बगल में वो बेशी क्या करती है, पियानो को प्ले करती है। Twilight, meanwhile, Bessie played on one piece of after another with utilizing energy. She loved music and how now you found she needed to was sit and piano and listen and watch her hand twinkling over the keyboard. Twilight depended on the room where his father came and hung her his hat and overcoat, placed his umbrella in the rack. फिर वो पियानो मतलब धीरे धीरे पूरी अच्छी तरह से पियानो बजाने लगती है, उसका काफी मन भी करने लगता है पियानो बजाने का, वो काफी एनर्जेटिक फील करके पियानो बजाती है। उसी बीच क्या होता है, उसके फादर आ जाते हैं वहां पर, वो अपने हैट और अपने जैकेट को निकाल करके वहां पर टांग देते हैं और वो कुछ बोलते ही है, और बट द मदर कैम ऑन द सॉफ्टली फिंगर डोंट इंटरप्टेड हर जॉन, तो वो बोलती हैं कि बस मतलब जैसे उसके पापा कुछ बोलने वाले थे, यानी कि उसके फादर थे बॉस्टविक थे, जॉन जब बॉस्टविक उसके फादर थे, बेसी के फादर कौन थे, जॉन बॉस्टविक, और उनकी मां मिसेस बॉस्टविक थी। ओके, तो उसके फादर बोलते हैं कुछ बोलने ही वाले थे, तो उसकी जो मदर होती है मिसेस बॉस्टविक होती है, वो ऐसे फिर अपने माउथ पर फिंगर रख करके उनको चुप कराती है और बोलती है कि इसको इंटरप्ट मत कीजिए, आप चुपचाप से वहां बैठ जाइए। सी वाज इनफैंट प्रोजेस, सी गैप्ड abandoned father,
She stood listening. The senator arrived, having the invited on the door and evening and from his spot and yelled, Professor, a man of great attainment, joined the party. फिर क्या होता है कि वो पियानो बजाते हैं, उसके फादर और यानी उसके पेरेंट्स दोनों यानी कि मिस्टर बॉस्ट्रिक एंड मिसेस बॉस्ट्रिक वहां बैठ करके देखते हैं। उस टाइम उस दिन क्या कहते हैं, बॉस्ट्रिक जो थे मिस्टर बॉस्ट्रिक वो अपने कुछ फ्रेंड को इनविटेशन दिए थे अपने घर आने के लिए। शाम हो गया था तो दो लोग आए थे उनके साथ साथ, एक तो प्रोफेसर और दूसरे सेनेटर और एक और लोग आए थे। ठीक है, 3 लोग आए थे। वो पहुंचते हैं और बेसी की जो म्यूजिक बेसी मतलब इस तरह से डूब गई थी उस पियानो बजाने में कि मतलब उसको कुछ आगे पीछे कुछ नहीं देखी, बस वो पियानो को प्ले कर रही थी। जितने भी गेस्ट लोग आ गए, प्रोफेसर, सेनेटर एंड अदर मैन, तो क्या की वो लोग सब लोग मिल करके उसके पियानो को सुन रहे हैं। ठीक है, Bessie played on the 4 elders stood and was Mr. Bostwick was very who was handling picked up the bonbons dish that was the lay table and ate the pink confection. The professor was watching him, so Mr. Bostwick confidently had the toward him. Mr. Bostwick को काफी भूख लगा था। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, उसी bonbons में से एक कौन से कलर का bonbons ले लेते हैं, वो पिंक कलर का bonbons ले लेते हैं। पिंक कलर का bonbons लेने का मतलब क्या था, वो अच्छी तरह से म्यूजिक यानी पिंक कलर का जो bonbons खा लेगा वो अच्छी तरह से सिंगिंग कर सकता है। वो खा लेते हैं, बहुत भूख लगी होती है। द प्रोफेसर वाज वाचिंग, वहीं पर प्रोफेसर बॉस्ट्रिक को देख रहे थे। फिर वो क्या करते हैं, द प्रोफेसर एट द लेमन, उसको देख करके बॉस्ट्रिक ने क्या किया, पिंक कलर का खा गया, तो प्रोफेसर उसको देख करके लेमन येलो कलर का वो भी कैंडी को यानी कि bonbons को खा लिया। ओके, और जो वहां पे जो सेंटर होता है वो क्या करता है, लेवेंडर कलर का पीस को अपने पास रख लेता है। वो मन में सोचता है सेंटर की अभी तो खाने का टाइम है, डिनर का टाइम है, मैं खा लूंगा उसके बाद इस लेवेंडर कलर को खा लूंगा। लेकिन बॉस्ट्रिक ने पिंक कलर का और प्रोफेसर ने ये लेमन कलर का इसको ये bonbons को खा गए। ओके, he did not eat and Mr. Bostwick will still listening and her daughters without thinking to many remaining piece which of the white one and slowly devoured. Now student, in the next paragraph there are some word meanings I have written on the board. First of all I am going to explain these word meanings, okay, then I will explain rest of the chapter. Okay, the first word is soprano voice, highest singing voice. ओके, रिपीट परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्मेंस को रिपीट करना, ऑडियंस के डिमांड पर क्या करना, परफॉर्मेंस को फिर से रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड एनकोर। एट्रोसियस मींस अनप्लीजेंट, गॉन रॉन्ग मींस टर्न बैड, पागल हो जाना। ओके, स्कैपर्ड मींस वाइल्ड एक्ट, जंगली जानवरों की तरह एक्टिविटी करना, दैट इज कॉल्ड स्कैपर्ड। फिसगेटिंग मींस नर्वस मैनर। ओके, तो क्या हुआ था कि इसमें सारे की सारे यानी सारा bonbons किसी को बेसिक तो पहले ही खा लिया था, बॉस्ट्रिक ने ले लिया था, प्रोफेसर ने ले लिया था, साइंटिस्ट ने ले लिया था, उसमें एक कैंडी सी बचा था, दैट वाज वाइट। ओके, उसका क्या होता है, लेट्स सी। Mrs. Bostwick still initially listening her daughter and without thinking took a remaining piece which was the white one and slowly devoured it. फिर क्या हुआ, उस बॉक्स में एक ही सी बचा हुआ था, कौन सा था वो, व्हाइट कलर का bonbons था। तो मिसेस बॉस्ट्रिक जो थी वो सिर्फ अपनी डॉटर की बेसी को सुन रही थी, उसकी म्यूजिक को, उसको पियानो को सुन रही थी, तो उसने क्या किया, मतलब ऐसे ही व्हाइट कलर का ले लिया। ओके, the dish was now empty and Claribel searched the precious bonbons had passed from the possessions forever. Suddenly Mr. Bostwick, who was a big man, began to sing a shrill tremulous soprano voice. It was not the same song Bessie was playing and the discord was so shocking that the professor smiled and senator put his hand on his ear and Mrs. Bostwick cried in a horrified voice. Okay, फिर अब क्या हुआ, वो जिस में bonbons रखा हुआ था वो डिश पूरी तरह खाली हो गया। कुछ ही देर के बाद क्या होने लगा कि जो बॉस्ट्रिक जो थे, मिस्टर बॉस्ट्रिक, उसने जो खाया था पिंक कलर का, ओके, पिंक कलर का bonbons खाया था, वो एकदम अच्छी तरह आवाज के साथ वो क्या करने लगे, सिंगिंग स्टार्ट कर दिए, काफी जोर के साउंड के साथ, काफी जोर से साउंड के साथ। तो वहां पे जो प्रोफेसर थे वो प्रोफेसर उनको देख करके मुस्कुरा रहे थे कि कैसे पागलों की तरह, ये इतना मैच्योर पर्सन है, ये पागलों की तरह क्यों मतलब गाना शुरू कर दिया। और जो सेनेटर था वो अपने कानों को ऐसे बंद कर लिया था। ओके, फिर क्या होता है, her husband continued to singing in battering and emulate the famous Christian Nielsen and paid no attention whatever to his wife or his guests. Fortunately, the dinner gong now sounded and Mrs. Bostwick dragged Bessie from the piano and ushered her guests into the dining room. Mr. Bostwick followed, singing the last rose of summer as if it had been an encore demanded by the thousand delighted hearers. उसके बाद जो गाना जो वो स्टार्ट किया तो मिसेस जो बॉस्ट्रिक थी वो मिस्टर बॉस्ट्रिक को मैंने रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो
उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या गा रहे हैं, और उनको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, वो किसी की बात को नहीं मान रहे थे। वो बस क्या किया, अपने कंटिन्यू वो गाने को स्टार्ट कर दिए थे। वहां पर बहुत सारे ये वो मैंने लोग थे, जैसे कि प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, वो लोग उसको देख करके मतलब काफी मतलब अजीब तरह का बिहेव कर रहे थे, सोचे थे कि अचानक इनको हो क्या गया। फिर क्या होता है, द पुअर वुमन वाज डिस्पेयर, the wife witnessing her husband's undignified action and wondered what that she do control him. The professor seemed more grave and usual. The senator's face wore an offended expression and Bessie kept moving her finger if she still wanted to play the piano. Mrs. Bostwick managed to get them seat created, although her husband had broken into another area and then the maid brought in the soup. फिर क्या हुआ, डिनर का टाइम हो गया। डिनर का टाइम हो गया तो मिसिस जो बॉस्टविक है, मिस्टर बॉस्टविक वो काफी रोकने की कोशिश कर रही हैं, वो रुक ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या करती है मिसिस जो बॉस्टविक है, वो अपनी डॉटर बेसी को जबरदस्ती ऐसे खींचती हैं कि मतलब चलो डिनर का टाइम हो गया, क्योंकि वो पियानो काफी मन से बजा रही थी और उसको मालूम ही नहीं चल पा रहा था कि वो क्या कर रही है, वो किसी की बात को सुन नहीं पा रही। तो मिसिस बॉस्टविक उसको खींच करके नीचे लेकर के जाती है। फिर प्रोफेसर और सेनेटर भी आते हैं। फिर पीछे पीछे बॉस्टविक जो है वो गाना कंटिन्यू सिंगिंग कंटिन्यू करते ही उन सबके पीछे आते हैं। फिर क्या होता है, when she carried a plate of professor, he cried in a high excited voice, hold it higher, I say, and spring up the gave table, suddenly kick the near and the selling the with the and sit upon the crowned professor bald head. At this atrocious act, the senator rose her from his seat and exclamation of horror and glanced at his hostess. सब लोग वहां पे डाइनिंग रूम में सब लोग चेयर पे बैठ जाते हैं। चेयर पे बैठते हैं तो फिर आती हैं मिस्टर बॉस्टविक की जो मैड होती है, वो सूप लेकर के आती है प्लेट में, मतलब उसमें ढेर सारे बॉल्स होते हैं, उसमें सूप लेकर के आती है। तो प्रोफेसर ने क्या किया था, पहले ही वो लेमन कलर का जो था ये बॉलमस को खा लिया था। तो लेमन कलर के बॉलमस को खाने से क्या होता है कि वो आदमी मतलब किक कर सकता है, चीज को किक कर सकता है। तो जैसे ही देखा प्रोफेसर ने कि जो मैड है वो सूप लेकर के आ रही है, तो प्रोफेसर ने पहले इसको अलर्ट किया, मैट को अलर्ट किया कि इसको जोर से पकड़ो, इसको जोर से पकड़ो, इसको जोर से पकड़ो, ऐसे बोलते, लेकिन मैट ने ध्यान नहीं दिया। तो प्रोफेसर ने एक किक लगाया, तो क्या हुआ, सारा का सारा जो सूप था लगभग 6 फीट ऊपर गया और सब वो क्या हुआ, नीचे सारा का सारा सूप गिर गया, जो प्रोफेसर के बैड हेड पे यानी उनके टकले पर भी गिर गया। ओके, इसके गिरने के बाद वहां पे जो सेंटर था वो चौंक गया, वो बेचारा डर गया और डर के मारे वो अपनी सीट से खड़ा होकर के पीछे हट गया। Such disgraceful rotting, and he had seen nor heard before the recent private family. He felt that the reputation was stacked, and being the only sane person apparently in the room, there was no one to whom he might appeal. The man had run away to cry hypersensitively and kitchen. Mr. Bostwick was singing, "Oh, promise me." The professor was trying to kick gloves of the challenges. Mr. Bostwick had switched her the recitation, and the boy stood the burning deck, and Bessie had stolen into the parlor and pounding in the overtune from the Flying Dutchman. फिर वो बेचारी बॉस्टविक बेचारी मैंने बहुत शर्मिंदगी फील करती है। अब सोचती है किसको बुलाए, बाहर से किसको बुलाए, अगर बाहर से किसी को बुलाएंगे तो क्या होगा, हमारे रेपुटेशन को थोड़ा सा लॉस होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर काफ़ी रिप्यूटेड फैमिली, यहाँ के काफ़ी अच्छी फैमिली जाने जाते हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी में हमारा इंसल्ट हो जाएगा, हमारा रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा। तो किसी तरह रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या होता है, तो मिस्टर बॉस्टविक को अपने गाने में लगे थे। प्रोफेसर ने तो पहले ही सूट को किक कर दिया था, और ये बेसी जब पियानो मतलब बजा ही रही थी, मतलब पियानो से तो हट गई थी, लेकिन अपने फिंगर को ऐसे से जैसे कि वो इमेजिन कर रही हो कि वो पियानो को ही प्ले भी कर रही है। सेनेटर बेचारा डर गया था। ओके, the senator was not as sure he would go crazy himself, so he slipped away from the terminals and taking his hat and coat hurried from the house. सेनेटर बेचारा डर गया, जल्दी से अपना टोपी को लिया, अपने हैट को लिया, अपने कोट को लिया और पहन करके अपने घर निकल गया वो। The night was set up, the late writing a political speech was delivered to the next afternoon at Faneuil Hall, but his experience at the Bostwick had unrevealed, and the secretary collected his thought, often the pause and shook his head, remember the strain. वो तो पहले से बेचारा सेनेटर पहले से डर गया था, और उसे नेक्स्ट डे एक पॉलिटिकल मीटिंग था। पॉलिटिकल मतलब कि कुछ स्पीच को लिखना था नेक्स्ट डे के लिए। एक हॉल था वहाँ पर, इस हॉल का नाम यहाँ पर दिया है फेन्यूल
एनुअल हॉल में उसको एक स्पीच, उसको मतलब एक पॉलिटिकल स्पीच उसको देना था, तो उसके लिए उसको लिखना था, तो रात हो गया था, सोचा कि चलो निकल जा रहा है यहाँ से, अब जाकर घर पे लिखेगा। पहले से बेचारा इन सब के एक्टिविटी से वो बेचारा डर करके The next day, he met Mr. Bostwick in the street, but passed him with by the stony glare. He felt he really could not afford the no this gentleman in the future. Mr. Bostwick was naturally upset. Yet in the mind there is a lenient faint memory in the quite unusual occurrence at his dinner party the evening before, and he did not know whether the dissent and senator's behavior or not. दूसरे दिन क्या होता है कि सेनेटर तो अपने घर चला जाता है, वो पॉलिटिकल उसको स्पीच लिखना था, तो स्पीच लिखने के लिए वो अपने घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन उसको उसकी ये मीटिंग में यानी कि मुलाकात होती है मिस्टर बॉस्टविक के साथ, उनके स्ट्रीट में, यानी ऐसे गली में, वो नेबर थे दूसरे के, तो क्या करते हैं वहां पर मिलते हैं, तो बेचारे बॉस्टविक जो थे वो काफी अपसेट थे और उनको थोड़ा थोड़ा सा याद था कि लास्ट नाइट वो उन्होंने सेनेटर को और प्रोफेसर को अपने यहाँ इनविटेशन दिया था डिनर के लिए, तो उनको काफी शर्मिंदगी फील हो रही थी, सेनेटर से वो ज्यादा नजर नहीं मिला पाए और वहां से चले गए। The political meeting was the feature of the day. For the senator's equivalence was well known in Boston, so the big hall was crowded with people, and one of the front rows sat the Bostwick family with learned young professor beside them. They all looked tired and pale, and senator was redundant and as a nervous seeing that refused as he looked direction of the second time. पॉलिटिकल मीटिंग स्टार्ट हो गई। पॉलिटिकल मीटिंग में बहुत सारे जाने माने हस्ती आए हुए थे, जिसकी वजह से एक बड़ा सा हॉल को बुक किया गया था। वो बॉस्टन का सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल मीटिंग था। ओके, तो बॉस्टन का एक बहुत बड़ा हॉल को उसके लिए बुक किया गया था और उसमें बहुत सारी क्राउड था, यानी बहुत सारे लोग आए हुए थे। जिसमें फर्स्ट रो में जिस फैमिली बॉस्टविक की फैमिली बैठे हुई थी, यानी बॉस्टविक, मिस्टर बॉस्टविक, मिसेस बॉस्टविक और बेसी। ओके, ये बैठे थे। उसके बगल में यार प्रोफेसर बैठे हुए थे। प्रोफेसर वाज वेल क्वालिफाइड एंड लर्न पर्सन। ओके, तो वो बगल में ही बैठे हुए थे और वहीं पर सेनेटर भी आसपास ही घूम रहा था और स्टेज पर था और वो मतलब उसकी अपने चांस का, अपने टर्न का वो वेट कर रहा था कि मेरा टर्न जब आएगा बोलने का तो मैं बोलूंगा। जो काफी मतलब ये लोग काफी थके हुए लग रहे थे, बेसी बॉस्टविक, मिसेस बॉस्टविक, प्रोफेसर सैंडर, वो लोग काफी टायर्ड फील कर रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम वो लोग अपने वाइल्ड जो एक्ट था उनका, यानी कि अजीब तरह का जो एक्ट किए थे उसके वजह से वो काफी थके हुए लग रहे थे। While the mayor was introducing him, the great man sat fighting and his chair and happening to the thumb and finger into the vest pocket. He found the lavender colored bonbons he placed that the evening before. वो बेचारा ऐसे करके, जो सैंडर था ऐसे करके वहां पर स्टेज पर ही खड़ा था, तो अपने पॉकेट में लास्ट नाइट में वो अपने लेवेंडर कलर का बॉन्बन अपने पॉकेट में रखा हुआ था, जिसको सबने खा लिया था। क्लैन बेसी ने खाया था, बॉस्टविक ने खाया था, प्रोफेसर ने खाया, मिसेस बॉस्टविक ने भी खाया था, लेकिन सेनेटर ने क्या किया था, उसको पॉकेट में रखा हुआ था ऐसे। फिर इसी तरह खड़े खड़े मतलब वो पॉकेट में अपने उसके हाथ गलती से चला जाता था मिस्टेक, तो उसके हाथ में आ जाता है, तो हाथ में आता है, वो सोचता है कि चलो ये तो मेरे हाथ में, चलो कुछ खाने के लिए आ गया। फिर वो क्या करता है, दिस मे बी क्लियर माय thought he said the senator slipped the bottom of his mouth. A few minutes afterward he arose before the vast audience which greeted him the exhaustive applause. My friends, began the senator in a grave voice, this is the most impressive and important occasion. तो अपने पॉकेट से लिया और अपने मुंह में डाल दिया, अपने मुंह में डाला, फिर गया माइक के पास बोलना स्टार्ट किया कि मेरे फ्रेंड्स, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है, हमारे लिए आज का जो ये दिन है वो काफी इंप्रेसिव और इंपॉर्टेंट ऑकेशन है। वो इतना बोलने के बाद बोलता है, देन द पॉज balanced himself up to the left foot and kicked his right leg in the air and wave featured as a ballet dancer. There was a hum of amazement and horror form of the spectators, but the centers appeared not to notice it. He wheeled around upon the tips of toes, nicked the and left graceful manner, and started a bald-headed man in front of row and casting a long glance in his direction. वो तो खा लिया था, लेवेंडर कलर का वो खा लिया था। खाने के बाद क्या होता है कि उसको याद आ जाता है, उसमें खा लेता है तो उसके अंदर वो एक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि वो लेवेंडर कलर के खाने से क्या होता है कि वो डांस करने, जो लेवेंडर कलर का खा जाएगा वो डांस करने लगेगा। तो पहले क्या करता था, बोलते हुए कुछ बोलते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे उठा लेते, पैरों के एक पैर को उठाकर डांस करना स्टार्ट करता। सारे लोग वहाँ पर जो होते हैं ऑडियंस, जितने भी ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं डर के मारे, उसको क्या हो गया, लेकिन वो बिना इन सब बातों को परवाह किए अपने पैरों को उठा लिया, अपने हाथों को सर पर रख करके ऐसे वैसे मतलब डांस करने लगा।
डांस करते करते वो मतलब पास में जो बैठे हुए जैसे नियरेस्ट स्टेज के जो नियरेस्ट रॉ था उस पर बैठे हुए एक बेल्ट बने हुए टकले आदमी के सर पर ऐसे ऐसे करके डांस करने लगा। सारे लोग काफी चौंके हुए थे, लेकिन उसको मतलब जरा भी सेनेटर को अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, सडनली क्लैरीबेल सर्च who happened to be present attend and screamed and sprang his feet, pointing a accusing finger at the dancing center. He cried in a loud voice, "That's the man who stole my bonbons! Seize him, arrest him, don't let him escape." तो फिर वहीं पर क्लैरीबेल, उस जो पार्टी हो रही थी वहाँ पर जो मीटिंग थी, पॉलिटिकल मीटिंग, उस मीटिंग में क्लैरीबेल भी आई थी। वो सारे एक्टिविटी, वो उसकी एक्टिविटी को देख, सेनेटर की एक्टिविटी को देखी कि डांस कर रहा था, उसको लगा कि किसी ने ही क्या किया है, मेरे बॉन्बन्स को चोरी किया होगा, जो खा जिसमें से एक को खा करके वो डांस कर रहा है। वो जोर से चिल्लाई कि ये वही आदमी है जिसने मेरी बॉन्बन्स को चुराया है, इसको अरेस्ट किया जाए, इसको जाने मत दिया जाए, इससे जेल हो जाए। But the others rushed and the hall, and thinking she had gone suddenly inside, and senator's friend seized him firmly and carried him outstairs entrance to the street, where they put him in the open carriage and instructed the driver to them the home. तो वहाँ पर आसपास जो थे उसके फ्रेंड्स थे, सेनेटर के फ्रेंड थे, वो देखे कि सेनेटर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा, उसको पकड़ करके लेके गए एक गाड़ी के पास, यानी बाहर जो हॉल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी थी, केस टाइप का था, उसमें ले जाकर उसको बैठा दिया और ड्राइवर से बोले इसको इसके घर पे छोड़ दो। The effect of the magic bombs was still powerful enough to control the poor senator, who stood upon the rear seat and the carriage and danced energetically all the way home to the delighted and the proud small boys and sober-minded citizens who shook their heads sadly, whispered that another man had gone wrong. तो विचार वो मतलब कि बॉन्बस का पावर इतना था कि वो जो सेनेटर बेचारा सेनेटर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था खुद पर। उस गाड़ी में भी उसको बैठा दिया गया, तो उसमें भी वो बैठे बैठे ही डांस कर रहा था। तो आस-पास एक बच्चा था वहाँ पर जो उस गाड़ी में देख रहा था सेनेटर को अचानक वो किया गया है, वो मुस्कुरा रहा था और कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे वो चला भी और जाते जाते बोला कि वो गुड मैन जो क्या हो गया, गॉन रॉन्ग हो गया, यानी कि अच्छा आदमी क्या हो गया, पागल हो गया। It took the senator several months of the recover from the same of humiliation of the scabbard, and curiously enough, he never had the slightest idea and included him the extraordinary man. Perhaps it was fortunate the last weapon had now been eaten, for they easily and considerably powerful man they did. फिर बेचारा वो काफी बेचारे का इंसल्ट हो गया, सेनेटर का तो बहुत इंसल्ट हो गया, फिर मतलब वो आदमी था उसके रिपुटेशन को भी काफी चोट पहुंचा, वो काफी उसको ह्यूमिलेशन भी हो गया। वो बेचारे उस ह्यूमिलेशन से उभरने में उसको लगभग कई महीने लग गए, कई मतलब मई मंथ लग गया उसको। इस तरह से जितने भी शर्मिंदगी हुई थी उसको हटने में, वो सोच रहा था कि मैं कैसे उस तरह का एक्टिविटी करने लगा, वाइल्ड एक्टिविटी करने लगा, शर्मिंदगी उसको काफ़ी फील हुई थी। इससे निकलने में उसे काफ़ी मतलब बहुत महीने भी लग गया। ऑफ कोर्स देन दे डिड। Of course, Claribel went again and vice chemist and signed a check another box, magic bonbons, and must be taken with care for see now a famous well-doing actor. फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? You know what happened next? फिर क्या होता है कि जब क्लैरिबेल थी फिर से गई डॉक्टर डॉस के पास और बोली कि मुझे फिर से वैसा ही बॉक्स चाहिए, जिस बॉक्स मतलब जो मेरे से वो बॉक्स बॉन्बस का बॉक्स जो मिस हो गया, जिसको बेसी बॉस्टविक प्रोफेसर और सैंडर ने खा करके अपनी अलग अलग तरह की एक्टिविटी को दिखाई, मुझे भी वैसे ही फिर से बॉन्बस चाहिए। और फिर से उसने क्लैरिबेल ने बड़ा सा चेक डॉक्टर डॉस को दिया और इस बार डॉक्टर डॉस ने भी उसको वैसा ही बॉक्स दिया जिसमें बहुत सारे बॉन्बस थे। और इस बार क्या की क्लैरिबेल उसको अच्छे से रखी और उसको अच्छे से यूज की और बाद में वो वहाँ की बॉस्टन के एक फेमस एक्ट्रेस बन गई। Okay, this was our chapter. This was very funny chapter today. Okay, we have completed this chapter. In this chapter, there are some question answers, something the correct answer. मैं इसके question answer को नीचे description में बता दूँगा एक, okay? And your homework is read this chapter. It's a very funny chapter, okay? And remember these word meanings. And do fear of this chapter. And watch the video. Watch this video again. Thank you.